Good morning, my dear juniors. I hope you all are fine with blessings of God. Myself Priyanka Sarkar, and today in this video, I will discuss all the questions of unit number 14, that is carbohydrate metabolism part 1. So this is the first chapter of block 4, but according to code wise, it is unit 14. So let's start with the first question with SAQ first, and that is we have to match between the column A and column 2. So हेक्सोकाइनेस का मैच हमें यहाँ बताना है. हेक्सोकाइनेस का मैच यहाँ पे क्या होगा? हेक्सोकाइनेस का मैच हो जाएगा ग्लूकोज या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. देन नंबर 2, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस. तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 phosphate dehydrogenase, we will have glyceraldehyde 3 phosphate 1,3 bisphosphoglycerate, that is the D. Third one, phosphoglycerate mutase. The for phosphoglycerate mutase we have 3 phosphoglycerate 3 PGA या 2 PGA. And then the fourth one, phosphofructokinase 1. For phosphofructokinase 1 we have fructose 6 phosphate, fructose 1,6 bisphosphate. The fifth number enolase. For the fifth number enolase, we have fructose 1,6 bisphosphate, glyceraldehyde 3 phosphate, and DNP. For the sixth one, aldolase, we have one second. For fructose 1,6 bisphosphate and for glyceraldehyde 3 phosphate, we have aldolase. यानी sixth one. And for the fifth one enolase, we have this one. And for the third we have phosphoglyceraldehyde 3 phosphoglycerate here, 2 phosphoglycerate. And for the last one, phosphoglutamate we have glucose 1 phosphate, glucose 6 phosphate. Now moving toward the next question. The second number question is asking us about choose the correct option given below. The next yield of ATP during the lactase fermentation is 2 or 4. So it is 2. The second one, that's the example of a human tissue that can be ferment glucose to what? So the option is given. Skeletal muscles है या lactate है, skeletal muscles है या ethyl alcohol है. So you have to keep in mind the skeletal muscles ऐसा example होता है of a human tissue that can ferment glucose to lactate. Hence हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्केलेटल मसल्स एंड लैक्टेट हो जाएगा, ना कि स्केलेटल मसल्स एंड इथाइल अल्कोहल. सो फर्स्ट जो यहाँ पे ऑप्शन है ब्रैकेट में, वो हमारा आंसर हो जाएगा. द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अल्कोहल फर्मेंटेशंस आर डैश एंड डैश. सो एंड प्रोडक्ट अल्कोहल का क्या होता है? इथेनॉल एंड CO2 होता है, ना कि मतलब एसिटाल्डिहाइड एंड NADH नहीं होता है, इथेनॉल एंड CO2. हेंस इथेनॉल एंड CO2 विल बी द आंसर. द फोर्थ क्वेश्चन, इन बोथ द लैक्टेट एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन द पर्पस ऑफ गोइंग बियॉन्ड द ग्लाइकोलाइसिस इज टू generate more energy or to regenerate NAD plus. So of course regenerate NAD plus. Now match the following type questions. Pyruvate dehydrogenase is given, dihydrolipotransacetylase is given, and dihydrolipolydehydrogenase is also given. The first one will match with TPP, and the second one will match with lipomate, and the third one will match with FAD. So by this we have done with the discussion of question number 2. Now we will move toward the next question. Third number question is how many molecule of CO2, NADH and FADH2 are produced in one citric acid cycle? एक citric acid cycle में कितने molecule CO2 के and NADH के and FADH2 के फॉर्म होते हैं? तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट so 2 molecules of CO2
3 molecules of NADH and 1 molecules of FADH2 are formed in each cycle of citric acid. Citric acid cycle अच्छे से हमने पढ़ रखा है, एंड दैट सिट्रिक एसिड साइकिल का हमें ये प्रोडक्ट का अमाउंट बताना है. CO2 कितना होता है यहाँ, 2 मॉलिक्यूल्स पे फॉर्म होंगे. NADH यहाँ पे फॉर्म होगा 3 NADH और FADH मॉलिक्यूल कितने फॉर्म होंगे, FADH2 1. सो हमें याद रखना है कि CO2 2 molecules of CO2, 2 molecules of CO2, 3 molecules of NADH and 1 molecules of FADH2 are formed in the citric acid cycle. Now we will discuss the fourth question. What is the fourth question? It is, name the enzyme unique to the pathway of gluconeogenesis. Gluconeogenesis का क्या मतलब है? नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब बनना, ग्लूको मतलब ग्लूकोज यानी नया ग्लूकोज बनना. नया ग्लूकोज बनना इज ग्लूकोनियोजेनेसिस. उसका हमें बताना है एंजाइम, उसके पाथवे का एंजाइम हमें बताना है. सो सबसे पहला जो एंजाइम है वो है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट द कन्वर्ट फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. एंड द सेकेंड वन इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में. एंड देन फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज जिसका काम है पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज को कन्वर्ट करना इनटू पाइरुवेट टू फिनोल पाइरुवेट. सो फर्स्ट क्या है, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में. सेकेंड है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में. एंड थर्ड है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोकाइनेज जो कि पाइरुवेट कार्बोजाइलेज को कन्वर्ट करता है पाइरुवेट से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेंटोज पाथवे फॉस्फेट पाथवे. हमें पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का सिग्निफिकेंस बताना है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. सो द सिग्निफिकेंस ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज ribose 5-phosphate is used in the synthesis of nucleic acid and erythrose 4-phosphate for the aromatic amino acids. यानी राइबोज 5-phosphate का यूज़ होता है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में एंड एरिथ्रोज 4-phosphate का यूज़ होता है एरोमेटिक अमीनो एसिड के सिंथेसिस में. NADPH प्रोड्यूस्ड जो होता है इट इज़ यूज्ड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड्स. और RBC में NADPH प्रोड्यूस होता है, उसको यूज़ करते हैं रिडक्शन ऑफ ग्लूटाथियोनिन एंड दस हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. यानी जो RBC प्रोड्यूस हो रहा है मतलब RBC में जो NADPH प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम यूज़ करते हैं रिडक्शन ऑफ ग्लूटाथियोनिन में ताकि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटा सके, रिड्यूस कर सके. नाउ वी विल मूव टू द समरी डिस्कशन. The first statement is carbohydrate metabolism is initiated as oxidation of glucose by glycolysis with release of some energy. what है कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है सबसे पहला स्टार्ट कैसे हुआ है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से. सबसे पहले स्टार्ट हुआ है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से. ये जो ग्लूकोज है इसके ऑक्सीडेशन से स्टार्ट हुआ है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म. एंड इससे क्या होता है, एनर्जी का रिलीज, इट लीड्स टू द रिलीज ऑफ एनर्जी. सेकेंड वन इज पाइरुवेट इज द इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस which has different fates under anaerobic conditions. It undergoes fermentations and purposes is to generate NAD+ for glycolysis and continue. So बोल रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस हो गया, अब ग्लाइकोलाइसिस के होने के बाद में पाइरुवेट हमें मिल गया. अब ये पाइरुवेट का है जो अलग अलग फेट है, ये एनारोबिक कंडीशंस में फर्मेंटेशंस में भी जाएगा कि वो NAD+ जनरेट करे ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यू करने के लिए. एंड वी नो इट वेरी वेल कि उसके बाद में जब एक बार ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ग्लाइकोलाइसिस के होने के बाद में पाइरुवेट हमारा कंपाउंड बन गया, पाइरुवेट बन गया हमारा. पाइरुवेट बनने के बाद में उसका डिफरेंट फेट होता है. ये क्यों बोला है, क्योंकि उसके बाद में वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा कि वो फर्मेंटेशंस करेगा, ये उसके हाथ में है. सो पाइरुवेट से हमारा वहाँ पे फर्मेंटेशंस भी हो रहा है अंडर एनारोबिक कंडीशंस, ये फर्मेंटेशंस भी करेगा एंड ये क्रेब्स साइकिल में भी इंटर करता है. सो अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग रिएक्शंस बन के निकलेगा. पाइरुवेट अगर क्रेब्स साइकिल किया तो वो अलग रिजल्ट देगा, फर्मेंटेशन किया तो वो अलग रिजल्ट देगा. सो इसलिए बताया गया है. सो जब फर्मेंटेशन करेगा तो NAD+ जनरेट करेगा फॉर द ग्लाइकोलाइसिस टू कंटिन्यू. नाउ द थर्ड वन इज
Third one is under anaerobic conditions, pyruvate enters citric acid cycle where pyruvate is commonly oxidized with CO2 and H2O. एरोबिक कंडीशंस में वो क्या करता है, एरोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन करेगा, लेकिन एरोबिक कंडीशंस में वो क्या करेगा, सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करेगा जहाँ पे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर के CO2 H2O देगा एंड रिलीज ऑफ एनर्जी फॉर्मेशन रिडक्शन इक्विवेलेंट देगा एंड साथ में ही इट विल ऑल्सो गिव रिलीज ऑफ एनर्जी एंड फॉर्मेशन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट लाइक NADH FADH2 एंड दिस एंटर ETC टू प्रोड्यूस ATP. सो वेरी सिंपल कि वो एरोबिक कंडीशंस में सिट्रिक एसिड साइकिल को इंक्लूड किया, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर CO2 H2O दे दिया with energy and with some equivalent like NADH FADH2 एंड फिर ये NADH FADH2 दे दिया एंड देन फिर इंटर कहाँ करेगा, ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ताकि वो ATP का प्रोडक्शन कर सके. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ETC में एंटर करेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन ये ATP प्रोड्यूस कर सके. नाउ द नेक्स्ट point, pentose phosphate pathway involves interconversion of sugar and formation of tetrose is required for the synthesis of aromatic amino acids and nucleic acid respectively. pentose phosphate pathway के बारे में बोला गया है कि इसमें interconversion होता है शुगर का एंड tetrose का फॉर्मेशन होता है, जिसकी रिक्वायरमेंट है कि aromatic amino acid और nucleic acid के सिंथेसिस के लिए, जिसकी रिक्वायरमेंट है aromatic amino acids और nucleic acid के सिंथेसिस के लिए. Now we will discuss the last 2 points. And those are, when glucose level in the body is low, glucose is synthesized in the cell from non-carbohydrate precursor by gluconeogenesis, and this precursor include pyruvate, lactate, propionate, glycerol and amino acids. क्या बोल रहा है कि जब ग्लूकोज लेवल बॉडी में लो हो जाए, जब ग्लूकोज का लेवल बॉडी में घट जाए, कम हो जाए, तो ग्लूकोज को सिंथेसाइज हम कैसे करते हैं, सेल में नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है नया ग्लूकोज बनाना. तो जब भी बॉडी में कम हो जाता है तो हम सिंथेसाइज नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से ग्लूकोनियोजेनेसिस करके बनाते हैं. एंड ये प्रिकर्सर में कौन कौन से प्रिकर्सर्स इंक्लूडेड हैं, दर आर जो पाइरुवेट, लैक्टेज, पाइरुवेट, लैक्टेट, प्रोपिनिएट, ग्लिसरॉल एंड एमिनो एसिड्स. तो ये सारे प्रिकर्सर्स इसमें इंक्लूडेड हैं. द लास्ट पॉइंट इज regulation of these pathway is at the level of irreversible reactions takes place through the various mechanisms such as the end product inhibition, reversible covalent modifications of the enzyme or allosteric modulators. मतलब बोल रहा है कि इस पाथवे का अगर रेगुलेशन हो, ठीक है, तो इज एट द लेवल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शंस. It takes place through the various mechanisms such as the end product inhibitions, reversible covalent modifications of the enzyme or allosteric modulators. तो ये बोल रहा है कि अगर रेगुलेशन हो इन पाथवे का तो reactions can be reversed back. Reactions are irreversible and various mechanisms से हो सकता है, जैसे कि तुम्हारा inhibition, reversible covalent modifications of the enzyme या allosteric modulator. That's all for this video. We'll discuss the terminal questions in the next video. Thank you everyone and don't forget to subscribe my channel.